Yes. In last lecture, we had started with loops, and loops are used where repetition is there, right? So rather than writing the statements again and again, or repeating everything, we are using loops. And not only for the repetition, we have other applications of this loop that we'll be doing today in the in the form of programs. So in loops, we have for loop, while loop, do while loop, then we have nested loop. We had done up till for loop. So in for loop, we had studied that first we have to put a keyword for, then I have to start round bracket, and inside this round bracket, I have three things. First is the initialization statement, then I have to put a semicolon. Second is the test expression, means some condition is there. To when that condition is true, till then the loop will be executed, and then again we have to put a semicolon, and at the third position we have given some update statement. Updation is there in the form of plus plus or minus minus or some multiplication division, or it can be anything, but in the form of updation statement. And on the lines of code that are here, that is the portion where this loop will be implemented, right? After that, okay, I think we had not covered the flow chart for loop, so we will be covering now. So first initialization statement is there, and we had studied that normal statement that I am that assignment, that where we are using some assignment operator, or we are assigning anything to some variable, that will be taken in a rectangular box. So initialization is also similar kind of a statement only, that will be kept in this rectangular box. And after that we have to get the condition. So I mentioned 4 steps in the last lecture also. So first was the initialization, second will be the test expression. When this condition is true, then third step will be followed, that was the body of the for loop. Yes. And again, what will happen now, fourth step will be followed, that is the update statement. So if whatever will be in the updation, that will be in the form of assignment only, so that will also be in the rectangular box. And if the condition is true, then update then statement will be updated, and then again some condition will be no, again after the updation statement, again the test expression is there, and when that test expression is false, then you have to exit from the for loop. Yes. And then after the for loop, there can be some other statements in the main program that can be followed after the for loop. Yes. So we had covered these examples also regarding for loop, and we had printed 0 1 2 3 4 5. Yes, these numbers were printed that I had shown you. Then after that, we had printed back series like 10 to 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 was printed. I hope you had also implemented these programs on your own. 1 minute. Let me admit people inside. So next we had done to print all the even numbers, that also that here we have to start with 2. And for, I think we had done this example, that for the updation statement I had added I had done I is equal to I plus 2, means if you add 2 only, then I will get the even number. Yes, this you can do by this method also. Now in this case, what we are doing, I am writing in the updation part as I plus plus, but after the printf, I am taking again I is equal to I plus 1. So actually updation statement is this one and this one also. So by combining both of these things, anyways I is equal to no, I is becoming I plus 2. Yes, 2 is being added to the I, and this is similar case. Either you can do like this, that you have to put I plus plus,
and here at this position, or you can put here also. Otherwise you can directly put I is equal to I plus 2 here for even numbers as well as for odd numbers, because in this case we have to add 2. Okay, so I have this example. I have print the series 1, 8, 27, 64, 125 and 216. So when there is a repetition, you can see by this sequence, you can by this series mainly, you can see that what what it is representing: 1 cube, 2 cube, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, and so on. Yes, up to 6. So this series can start from 1 and it is going up to 6 cube, right? So I can write in my loop. See, now loop, why I am using loop here, because this series has to be printed. Yes, तो अगर इसको मैं आगे तक लेकर जाती, मैं 10 का क्यूब भी दे सकती थी. So up to any number you can give this, you can give the last limit. Fine. So because this is a kind of repetition number, again you have to print one by one. So that's why we are using loop. Yes. Now I have to print 1 ka cube, 2 ka cube, 3 ka cube. Yes. So in my printf there can be, I can write I ka cube. Okay. Whatever will be the number, that will be what I have to print is the cube of that number. Yes. So what will be the program for that? This is the program that in int main I will be taking one variable. Yes, this is the initialization. This is the declaration, and now I am initializing. Yes, what is the initialization? That I am assigning 1 to this I, that it has to start from 1. Now series कहाँ तक जा रही है? It is 216, मतलब 6 का cube. So now you can write here the condition I less than equal to 6. Yes, ये condition किसके लिए होती है? I less than equal to 6. 6 तक तो चल रही है. लास्ट लिमिट क्या है? 6, और उससे पहले भी सारे आपको इसको लूप को चलाना है. यस. थर्ड हम क्या लिखते हैं यहाँ लास्ट में फॉर लूप में? यहाँ अपडेशन ऑफ स्टेटमेंट. यस, बिकॉज माई नंबर्स आर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन सब का क्यूब है. So this is a series 1, 2, 3, 4. So I will be adding 1 at each step. Yes. And in the printf, what I am taking, now you can see I into I into I. Yes, that is I cube. I ka cube liya hai, so that will get printed. And for inside this %d, I am also using this escape sequence \t to give space in between two outputs. Yes. By this way, you can print the series. Yes. Any question is there? Okay. Else I can take questions at the end. Okay. So next question is program to calculate the sum of first n natural numbers. So we know that natural numbers are positive numbers that start from 1, 2, 3 and so on up to n. So you have to calculate, you have to make a program to calculate the sum of first n natural numbers. Yes. That means n जो है, that will be given by the user. अब n is equal to 5 है या 10 है, that will be given by the user. Fine. So that is given by the user, and now what we have to do? We have to sum the numbers up to the number that is entered by the user. So it will start from 1. So it will give 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. जहाँ आपका, let us suppose it is 10. Yes. So last number, so any number n that is entered by the user is 10. ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? That should be the sum of all these numbers up to n. Yes. So if I write like this, I am now erasing. मेरे पास में 1 नंबर है, राइट? मैंने उसमें 2 करना है ऐड, तो इसी 1 में अब मैं क्या 2 ऐड कर दूंगी. यस. तो इसके बाद में
इसके आउटपुट में जो भी इसका आउटपुट आया, लेट अस सपोज आई डोंट नो व्हाट इज द आउटपुट, है इसके ही आउटपुट में आई विल बी एडिंग 3, यस। इसका जो भी आउटपुट निकला, टोटल इसका जो भी आउटपुट निकला, इसमें अब नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, +4, यस। इसका टोटल जो भी आउटपुट निकला, तो उसमें मैंने क्या करना है, ऐड करना है +5। सिमिलरली इसका जो टोटल आउटपुट जो भी निकलेगा, उसमें मैं क्या करती हूँ, +6 कर देती हूँ, एंड सो ऑन, राइट। सो दिस सिनेरियो दैट आई एम सेइंग कि यहाँ इसका आउटपुट जो भी निकलेगा उसमें मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर रही हूँ, इसका जो भी निकलेगा आउटपुट, इसको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैं अब +7 कर दूंगी। So, with this, by using this scenario, I am creating a program. How? See, so this is in the left hand side. I am showing this that you can directly take n. You can directly take n as the number, and you can take input from the user. Yes, you know how to take input with the help of scanf. You can take, right. So now you can see this for loop. फॉर लूप में मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि ये जो मेरे नंबर्स हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है, सो दैट विल कम इन द इनिशियलाइजेशन, यस। एंड देयर इज अ रेपिटिशन, सी दिस, देयर इज अ रेपिटिशन, यस। तो आपका एडिशन का रेपिटिशन हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ की लिमिट है यहाँ पर, यहाँ अगर यूजर ने 10 इनपुट किया था तो ये 10 तक जाएगा, अगर उसने कुछ और n इनपुट किया होता तो n तक जाता। सो बाय जनरलाइजिंग what we are taking the limit here, that is I less than equal to n, yes, I less than equal to n। और साथ में आपका ये जो भी रिजल्ट में क्या ऐड हो रहा है, एक एक नंबर, मतलब +1 करके 2 आ गया, +1 करके 3 आ गया, +1 करके 4 आ गया, यस। सो इन द अपडेशन स्टेटमेंट व्हाट आई एम राइटिंग, I++। जो आपका इधर सम हो रहा है, यहाँ जो आपके पास में सम हो रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू, जैसे मैंने आपको कहा है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर दूंगी, सिमिलरली जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर दूंगी, राइट। व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी रिजल्ट आएगा, बिकॉज जो आपका लास्ट एडिशन बार बार होता रहेगा इन नंबर्स में, दैट विल बी योर पर्टिकुलर रिजल्ट। Now to store that number in some variable, I am using another variable called sum। कोई भी नया वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आप इसकी वैल्यू को डालेंगे। अब कौन सी वैल्यू है, जो मैंने अभी बार बार यही बोला था कि इसके लास्ट रिजल्ट में आप नेक्स्ट नंबर को ऐड कर देंगे, फिर ये जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये जो सम आएगा उसमें आप नेक्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है। होल्ड दैट वैल्यू इन सम वेरिएबल, आई एम जस्ट यूजिंग अ न्यू वेरिएबल, मैंने उसको सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब आप, अच्छा, सबसे पहले क्या बात है कि आपको सम इज इक्वल टू यहाँ 0 लिखना है। एनीवेज whatever variable that you are using inside a program, that you have to declare, ठीक है। जब हमने सी प्रोग्रामिंग शुरू करी थी पढ़ने तो हमने देखा था कि कोई भी एक वेरिएबल जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वी हैव टू डिक्लेयर इट एट द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वो उसका डेटा टाइप क्या है, राइट, और आपकी अगर कुछ उसको वैल्यू देनी है आपने तो आप दे दीजिए। अच्छा, तो आपको इसको 0 वैल्यू देनी है इनिशियली। अच्छा, अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली इस आई को प्रिंट करूँ ना यहाँ पर, तो ये अगर मैं यहाँ पर कोई असाइनमेंट इसको नहीं कर रही हूँ n एंड i को, तो ये गार्बेज वैल्यू लेता है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू मतलब, अगर आप, एक मिनट आपको अगर मैं एक, आप इस कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा, अगर मैं आपको लिख रही हूँ इधर int a, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट एफ करेंगे %d, आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है और आप a को प्रिंट करेंगे, साथ के साथ आप अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। right now I will not execute it because otherwise it will hang in between, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ प्रिंट करके देखेंगे, आपने a को कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी कोई वैल्यू आएगी दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू, ठीक है, उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। हो सकता है कि वो 0 आ जाए, हो सकता है,
इफ योर मेमोरी इज नॉट फुल, राइट। तो आपके पास में कोई अनयूजुअल वैल्यू भी आ सकती है, ऐसा कुछ भी करके कुछ नंबर आ सकते हैं। आप कहेंगे मैंने तो एक की वैल्यू दी नहीं है, हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि ये वाला नंबर आ गया। सो एक्चुअली इट इज अ गार्बेज वैल्यू, अपने आप से उठा देता है। बट अगर आप इसको कुछ असाइन करते हैं कि a इज इक्वल टू 10, तो ये गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, तो फिर ये 10 प्रिंट होके आएगा। क्या? ठीक है। तो हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स जैसे इंट है, ये ऑटोमेटिक इसको बोलते हैं ऑटो वेरिएबल, तो इसकी बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है अनटिल एंड अनलेस यू असाइन। यहाँ पर तो आपने असाइन कर दी। अब जो मैं एक बात कर रही थी सम की, तो उसमें मैं सम इज इक्वल टू मैं 0 ले रही हूँ। ठीक है, मैं 0 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आपका जो एडिशन है इसमें +1 करोगे, आगे +2 करोगे, ठीक है, तो ये सब आपका इनिशियल 0 में ऐड हो, ना कि कोई भी गार्बेज वैल्यू। अगर मैं बोल दूं ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ है, उसमें कुछ 1 ऐड कर दिया, +2 कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका गलत रिजल्ट नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, so that's why I'm taking sum is equal to 0 here. Fine. अब आपका प्रोसेस क्या चल रहा है? sum is equal to sum plus I. तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? sum is equal to sum plus I. आपको याद होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sum plus equal to I. Yes, तो अभी उसी प्रोग्राम में ऐसा लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है? इटरेशन वाइज क्या बनेगा ये? सम इक्वल टू, पहले क्या आएगा? i इज इक्वल टू 0 पे, अभी देखो ये कहां तक जा रहा है, i इज इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू n। यस, अभी हम क्या करेंगे? सम तो 0 था पहले, सम पहली आइट्रेशन में जब i इज इक्वल टू 1 होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 1, क्या आएगा सम में? सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू इसको हमने फॉलो करना है, ठीक है, इस यहाँ पर इस लाइन में हमने इस चीज को फॉलो करना है, ऊपर वाले फॉर्मूला को। तो क्या आएगा? 0 + 1। ठीक है, तो अब सम के अंदर इस फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में क्या हो गया? सम में टोटल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? इट विल नाउ गो फॉर सेकेंड आइट्रेशन, फॉर i इज इक्वल टू 2, सम इक्वल्स टू, अब पिछला सम कितना है? 1 है, तो लास्ट वैल्यू, फॉर्मूला तो यही है मेरे पास में, ऊपर जो 9th लाइन में लिखा है सम प्लस आई। यस, तो सम की वैल्यू क्या है? 1, और आई क्या है? देखो सम की वैल्यू क्या है? 1 प्लस क्या करना है? आई की वैल्यू क्या है? 2, तो दिस विल बी 2। यस, कितना आया मेरे पास में? 3। नेक्स्ट इज i इक्वल्स टू 3, सो नाउ सम विल बी ना, जो लास्ट वैल्यू आई थी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी जो लास्ट वैल्यू प्लस प्लस करके लास्ट वैल्यू जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस कितना, यहाँ पर आई कितना है? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई ना, तो पिछले से सम क्या आया? 3, और साथ में यहाँ ऐड क्या हुआ? आई की वैल्यू, दैट इज 3, सो दैट विल बी 6 एंड सो ऑन। ऐसे कर यहाँ जो भी यूजर ने i इज इक्वल टू n तक जो भी उसने, लेट अस सपोज n इज 10, तो यहाँ आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो लेट अस सपोज यूजर ने 3 इनपुट किया था, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका? 6, मतलब आपका 1 + 2 + 3 करके क्या आया रिजल्ट? 6। मतलब आप लूप से बाहर आ जाइए और फाइनल रिजल्ट सम को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, लूप से बाहर आएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका फाइनल रिजल्ट है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया? इस लूप से बाहर आकर यहाँ पर उस सम को प्रिंट एफ कर दिया, सम इज इक्वल टू %d और सम। ठीक है, तो ऐसे हम एक प्रोग्राम करते हैं। somebody had raised hand. ओके, ठीक है, ठीक है, ऐसे ये हमारा एक कोई ये हम इनकी एप्लीकेशंस में हम यूज कर सकते हैं एक लूप को। ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके, so next is that multiple initializations can be there, multiple conditions can be there. yes, तो हमने देखा था कि फॉर लूप में 3 चीजें होती हैं। देखो
फॉर लूप में मेरे पास में 3 चीजें हैं। एक होती है क्या, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लाइन हेयर, फाइन, दिस लाइन, ठीक है। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट इज कंडीशन एंड देन अपडेशन, राइट। तो पहले में मेरे पास में मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकता है। मल्टीपल मतलब क्या, एक वैल्यू तो जैसे आई है तो आप उसको 0 दे दीजिए, बट कोई और भी वेरिएबल है जो आप यूज करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ 0 वैल्यू या कुछ और वैल्यू आई जे इज इक्वल टू 5 कुछ भी यहाँ दे सकते हैं। मीन्स के मल्टीपल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन आप एक फॉर में कर सकते हैं, इट इज अलाउड, फाइन, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सेकंड होता है कंडीशन, कंडीशन में आपने देखा होगा जब हमने इफ यूज किया था, हम 2-3 कंडीशंस को कैसे हम कंबाइन कर रहे थे, हमने उनको कंबाइन कैसे किया था कंडीशंस को, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम उसमें लॉजिकल एंड या लॉजिकल और यूज करते थे। तो यहाँ पर हम कंडीशन में भी मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे यहाँ ये एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। यहाँ एग्जांपल में आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई लेस देन इक्वल टू 50, तो एक रेंज दे दी है, आई जो है वो 10 और 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन दे दिया है, मतलब हम एक फॉर लूप में मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। फॉर लूप मतलब नॉर्मली लूप में हम दे सकते हैं, ऐसे हम वाइल लूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन नहीं होती, दैट विल सी लेटर, ओके। तो तीसरा हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर अपडेशन, हम अपडेट करते हैं स्टेटमेंट को। ये भी हमारे पास में मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैसे कि आई के ऊपर तो जैसे आप कुछ एक ही यहाँ डालेंगे, एक ही ऑपरेशन यहाँ करेंगे, ऐसे ही सेकंड वेरिएबल आप डाल सकते हैं, जैसे आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस कॉमा डाल के, तो राइट। जो आपकी कंडीशन है वहां लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे सेंटर में, बाकी जो लेफ्ट एंड राइट में है जो आपका इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन, उसमें हम कॉमा डाल के मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड मल्टीपल अपडेशन कर सकते हैं। Okay, so next you can go through, you can make these programs on your own, you can practice on your own, print all the odd numbers between 1 to 10, ठीक है। तो हमने इवन नंबर का प्रोग्राम लास्ट क्लास में किया था, तो आप ऑड नंबर्स का अपने आप से बना के देखिएगा। प्रिंट द सीरीज 1, 9, 25, 49, 81 एंड सो ऑन, इसको आप प्रिंट करके देखिएगा। तो यू कैन, हमने अभी जो क्यूब वाला किया है, तो यहाँ पर ऑड नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है, यस। ऑड नंबर्स लिए हुए हैं हमने यहाँ, 1 है, 3, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यस। तो आप अपडेशन में जब आप फॉर लूप लगाएंगे, इट गोज फ्रॉम 1 टू ये कितना 11, 12, 13, 1 to 13 तक जाएगा, यस। इनिशियलाइजेशन 1 से होगी, सेकंड में क्या होता है कंडीशन, सो आई गोज फ्रॉम 1 टू लेस देन इक्वल टू 13, यस। तीसरा अपडेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ सीरीज ऑफ कितना ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। प्रिंटफ में क्या आ जाएगा, परसेंट डी आई इनटू आई, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस, अदरवाइज आई कैन राइट here also. So this is the series, इसके लिए फॉर लूप क्या लगेगा, int I is equal to 1 से स्टार्ट करेंगे, then after that 1 minute, so here there will be a semicolon और फिर I less than equal to 13 हो जाएगा, then I is equal to, because odd numbers है ये, तो I is equal to I plus 2 हो जाएगा, ठीक है। और लूप में क्या होगा आपके पास में, प्रिंट और साथ में आएगा पहले %d, फिर एक बैकस्लैश t दे दीजिए, गिव सम स्पेस इन बिटवीन दीज, या कॉमा दे सकते हैं, जैसे इधर कॉमा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ बैकस्लैश t की जगह इधर कॉमा दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, I into I, yes, then you put semicolon, fine, okay,
So after that, write a program to calculate sum and average of first n natural numbers. So here you have write a program to calculate sum and average of first n natural numbers. तो sum आपने calculate करना देखा हुआ है. हमने यहाँ पर ये क्या किया, sum is equal to sum plus I. क्या है, sum is इसका n natural numbers का. ठीक है, एवरेज कैसे आएगा, इस सम को डिवाइड कर दीजिए बाय नंबर ऑफ टर्म्स. यस, ऐसे आपके पास में एवरेज आ जाएगा. This you can do. Next is write a program to calculate factorial value of a number. That we will do today. And write a program to check whether a given number is prime or not. So okay, this is also important. Write a program to check whether a given number is prime or not. So let's go through its algorithm first. तो एक प्राइम नंबर क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं. एक मिनट, यहाँ 2 लोग वेटिंग रूम में हैं. ठीक है, एक प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से तो डिवाइड होती है. ठीक है, तो अगर मेरे पास में 11 नंबर है तो 11 बाय 11 भी हो जाएगा एंड 11 बाय 1 भी हो जाता है. दैट इज पॉसिबल. लेकिन मेरे को अब क्या ढूंढना है, आई हैव टू गो फ्रॉम 1 को छोड़ के 2. यस, आई विल टेक द नंबर 11 बाय 2. ठीक है, इसको मैं उल्टा लिख देती हूँ, देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर जस्ट मिनट. ठीक है, तो ये एक तो मैं चेक करूंगी कि 11 बाय 2 से क्या ये डिवाइड हो रहा है. यस, क्योंकि 11 बाय 1 कोई भी नंबर, here I will be replacing by n after that. ठीक है, I am checking 11 by with 11 first. 11 by 1 तो पॉसिबल है, चलो. then 11 by 2, आगे 11 by 3, 11 by 4 and so on, 11 by 5, 11 by 6, 11 by 7, 8, 9 and finally 11 by 10. ठीक है, मैं यहां तक इसको चेक करूंगी, ये मेरी कंडीशन रहेगी. यहाँ मुझे चेक करना है कहीं पर भी यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ कोई भी ऐसे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है. yes, why I am taking this 2 and 10 because ये इंटरनल लिमिट है, क्योंकि जो भी कोई मैं नंबर लेती हूँ वो 1 एंड बाय इटसेल्फ तो वो डिवाइड हो ही जाता है. सो लेट अस एक n इन जनरल, n है मेरे पास में, तो n बाय 1 साथ में n बाय n तो पॉसिबल है ही है. ठीक है, एंड नाउ आई टेक n बाय 2, n बाय 3, n बाय 4 एंड सो ऑन टू क्या आएगा यहाँ पर, n डिवाइडेड बाय n माइनस 1. यस, ठीक है, ये n है और इसका -1 करके ये है, क्योंकि अपने आप से तो ये हो ही रहा है डिवाइड. ठीक है, सो दिस आई विल बी चेकिंग. मुझे बार बार जस्ट अ मिनट, somebody has raised hand. yes yes बोलो, unmute yourself first if you are raising hand. I am giving you permission to unmute yourself. ठीक है, right, so I'll be checking from 2, I'll be dividing the number by 2. दूसरा क्या है, up I'll go up to n minus 1. ठीक है, और बीच में n तो है ही है, ये कॉमन है. so let's go through its algorithm first. What its algorithm says, take integer variable a, divide the variable a with a minus 1 2. ठीक है, so either you can go from 2 to n minus 1 या फिर उल्टा भी जा सकते हैं, n minus 1 to 2. ठीक है, आपको इस रेंज में देखना है. इसके अंदर अब आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी. क्या लगानी है कंडीशन, if a is divisible by any value from a minus 1 to 2 it is not prime, else it is prime. yes, ठीक है, तो इसको हम प्रोग्राम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. नाउ प्रोग्राम की फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ कैसे, कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ आप इसमें आ जाइए एंड जस्ट अ मिनट,
here, यहाँ मैं एक फॉर लूप लगाती हूँ। देखो यहाँ अब रेपिटिशन हो रही है किस चीज की, ये तो n है बट 2 3 4 अप टू n-1, ठीक है। तो यहाँ पर दिस रेपिटिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप, फाइन। और साथ में अब क्या करेंगे हम, ये जो ये रहा, ये जो मेरा फॉर लूप है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। पहले ये देखो, आपको एक तो पहले कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। तो क्या है कंडीशन, वो है कि आपका कोई भी नंबर है जो वो दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर्स। कौन कौन से नंबर, 2 3 4 ये सब एंड सो ऑन अप टू n-1। ये जो नंबर जो चेंज हो रहा है ना, उसको मैं लूप में रख, उसको मैं इंक्रीमेंट करूंगी, ठीक है। और फिर जैसे i इज इक्वल टू int i इज इक्वल टू 2 से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने i लेस देन इक्वल टू n-1 लिख दिया, ठीक है। तो साथ में i प्लस प्लस लिख दिया, यस। ये मेरी रेंज हो गई, 2 हो गया ये वाला 2 और साथ में n-1, तो ये हो गया n-1, यस। तो इसको मैंने अब इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरे को क्या देखना है कि यहाँ डिवीजन जब हो रही है वो उसका completely divisible नहीं होना चाहिए, तो I will take the modulus operator. So n by I then equal to 0. By this method only you are able to get whether the number, so इसमें पहला क्या आएगा, n modulus 2, ठीक है, n modulus 2, then n modulus 3, n modulus 4 and so on up to n modulus n-1. So this will be the last condition. अगर कहीं पर ऐसा होता है कि कहीं पर 0 के इक्वल आ जाता है, this is one and the same thing. So inside you can take prime is equal to 0. You can take another variable कि अगर ऐसा scenario होता है, so I am taking a variable जो 0 इसको मैंने assign कर दिया. So if prime equal to 1, then the number is prime, else it is not a prime number. ठीक है. So यहाँ पर ये जो आपने अभी किया है, इसमें हम एक और चीज भी कर सकते हैं to increase the efficiency. अगर यहाँ पर आप हाफ भी n/2 भी कर सकते हैं। अगर प्राइम होता है, अगर नॉन प्राइम होता है तो हाफ मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पर पूरी एक सीरीज आ जाएगी। इवन इफ यू चेक हाफ, फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ, तो आपका हाफ चेक करते हुए भी आपको मिल जाएगा कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट। so you can also the condition that I goes up to n/2, ठीक है। तो both conditions can work. तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ n/n-1 तक है, तो आप n/2 भी कर सकते हैं इधर, ठीक है। So that is also possible. So ऐसे फिर आप you can find whether the number is prime or not. You can take a flag variable or means any other variable, जैसे पीछे लिया था 0 assign करके, and after coming out of this loop you can hint that this number is prime. If this flag is 0, then it is a prime, because अगर यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ n मॉडुलस ये 0 मतलब completely divisible है, then it is not a prime number. तो ये second condition हो जाएगी, fine. Okay, so next is while loop. तो while loop में हम क्या करते हैं, again you have to put all these things, but I'll just transform 1 minute. So I have a for loop here. Here I have initialization statement I is equal to 0. Then I have I less than equal to n कर देती हूँ. I have I plus plus, ठीक है। ये मेरे पास में एक लूप है और यहाँ मैंने कुछ प्रिंट कुछ भी ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। ये आपका एक फॉर लूप है। तो इसको मुझे अगर वाइल लूप में ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक वाइल लूप जो होता है, I have to write keyword while here. अगर आप देखो तो ये बोल्ड में आ गया है। तो inside while I will be writing the condition, ठीक है। Inside while I will be writing the condition. Then follows body of the loop. Yes, so this is body of loop. और यहाँ पर भी मैं body of loop लिख देती हूँ, body of loop, ठीक है। Okay, this is body of loop. Yes. अगर मैं एक फॉर लूप में, अगर मैं वाइल लूप, अब देखो होता ये लूप दोनों सेम है, the work of these loop is same, right? अगर आप यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं,
ठीक है, लास्ट आपने बता दिया कि रेपिटेशन मेरी यहाँ तक खत्म होनी चाहिए, बट स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए? तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आई विल बी राइटिंग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आई विल बी राइटिंग हियर इनिशियलाइजेशन, इसको कर लेना स्पेलिंग को। ठीक है, तो यहाँ आपकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और साथ में इसके अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, अपडेट स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगी। Okay, so in some scenarios you need some update statement or sometimes you do not need. So it is, you know, if you have to update something you can write update statement inside this. Okay, अगर मुझे ऊपर वाले for loop को while में transform करना है तो क्या लिखूंगी मैं? Initialization तो क्या है, ये while के बाहर आ रहा है, int I is equal to 0, so I can write here, ये अगर main है मेरा, so I can write here int I equals to 0. Yes, so this is the initialization statement. Now I have to write condition inside while round bracket में I have to write condition. So for loop का ये रहा, I less than equal 10. Yes, so body of the loop, third thing is body of the loop, that is here. So update statement में right now I can write here I plus. Fine, so this is the this is the while loop. So this loop will also work same as the for loop. Okay, तो अगर आपके पास में कोई ऐसा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक फॉर लूप दे दिया आपको, उसमें वाइल लूप में ट्रांसफॉर्म करिए, या वाइल लूप दे दिया है उसको फॉर लूप में ट्रांसफॉर्म करिए, सो आई थिंक यू कैन इजीली डू दैट. यस, ठीक है, ओके, सो लेट्स डू वन मोर प्रोग्राम. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इसका भी एक्सप्रेशन यहाँ सेम है, आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं. आई विल just go through one example, not the reverse but factorial of a number. Let's go through factorial of a number. Factorial में हमारे पास में क्या होता है, factorial में मेरे पास में क्या होता है, अगर नंबर मैंने 5 को इनपुट किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, एक नंबर जो है, जैसे मैंने आपको पहले सम करवाया था ना, सम इज इक्वल टू 0, और फिर क्यों आप कर रहे थे, क्योंकि 1 में कि 1 प्लस 2 प्लस इस रिजल्ट में प्लस 3 कर दो, फिर इस रिजल्ट में प्लस 4 कर दो, एंड सो ऑन. दैट्स व्हाई आई यूज्ड सम हियर, है ना, तो यहाँ सम कर रहे थे. अब यहाँ पर भी मुझे एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पिछली वैल्यू में कोई 5 इंटू 4 हो रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें -1 करके एक t जो है ना, वो क्या करे, 4 जो लास्ट नंबर था उसका -1 करके उस रिजल्ट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ भी मैं एक f इज इक्वल टू या फैक्ट नाम का कोई भी एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का ले लेती हूँ, उसको 1 कर देती हूँ. इसको अब मैं 0 नहीं लूंगी, क्योंकि 0 से अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करती हूँ तो सारा रिजल्ट ही 0 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ मैं एक ऐसा इनिशियल वैल्यू फैक्ट इज इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, जिसमें मेरे पास में ये मल्टीप्लाई होके, जैसे 1 इंटू 1 को ऐड किया तो 2 हो गया. ठीक है, इस रिजल्ट में 2 प्लस 1 करके इस पूरे रिजल्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे रिजल्ट में मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो. ठीक है, एंड सो ऑन. राइट, so what we will be doing in this program, you have to take input from the user. तो आप यहाँ पर input लेंगे, and then here it is done with while loop, while number is greater than 0. फैक्टोरियल जो है, जो आपने फैक्टोरियल यहाँ मैंने फैक्ट लिया है, that is equal to 1, उसको असाइन किया. then you can write here, then you can take factorial into number. yes, by number, जो आपका नंबर है वो क्या हो रहा है, हर स्टेप माइनस हो रहा है. यू आर मल्टीप्लाइंग, से 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 जो भी रिजल्ट आया उसका, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 3. at every step that number is decreased by 1. 5 next time में वो 4 बन जाएगा, next time में वो 3 बन जाएगा, and it will be multiplied and it will be stored in the factorial variable. लास्ट में आप लूप से बाहर आके उस फैक्टोरियल को प्रिंट कर दीजिए. ठीक है, now there are 2 minutes, please ask questions if you have any. Please raise your hand and ask questions. We have only we will do up till this now. If you have any questions, please ask me. Raise your hand, I'll unmute you.
यस सक्षम, यस मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये वाला ट्यूटोरियल वाइल लूप वाला। लगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 1 मिनट, ठीक है। यस लवप्रीत, मैम यस लव, मल्टीपल कंडीशन वाला बता दो मैम। मल्टीपल कंडीशंस अभी नहीं आएंगी, अभी छोड़ दो, अभी अभी जब करेंगे तो बाद में देखेंगे। अभी आगे और भी है ना इसका लूप का, ठीक है। अभी तक के आज के लेक्चर में नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस आएंगी नेस्टेड लूप्स में, ठीक है। ओके, तो यू कैन, ओके ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में, आप इसको डायरेक्टली फॉर लूप से भी पहले कर सकते हो। देखो फॉर लूप में क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 1 लिया आपने, लेस देन इक्वल टू n लिया, आपका 1 से जा रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करोगे, ठीक है। सो राइट नाउ यू आर, जैसे हमने पहले क्या किया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई किया था, तो यहाँ आपके पास में फैक्ट इज इक्वल टू एक इनिशियल फैक्ट जो 1 है मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, है ना। ऐसे मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया था। देखो एवरी टाइम आई विल नॉट सॉल्व फॉर एवरी ईच एग्जाम्पल, तो आपको भी कुछ करना है। आपका क्या होमवर्क रहेगा, आई इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चला के देखिए, फैक्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 था, आपने ऊपर फैक्ट को 1 डिक्लेयर किया था, मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अभी आई 1 है, आई प्लस प्लस हो जाता है तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है, तो ये आएगा आपके पास में फैक्ट इज इक्वल टू, पिछली वैल्यू क्या है, 1 है टोटल, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2, फाइन, टोटल यहाँ 2 आ गया। आई एम सॉरी, यहाँ आई इज इक्वल टू 2 आएगा, यस। आई इज इक्वल टू 3, नाउ आई थिंक विद दिस यू विल बी नो, फैक्ट इज इक्वल टू, पिछला क्या है, फैक्ट 2, यस 2, आपका रिजल्ट 2 आया है, मल्टीप्लाई बाय 3, यस, दैट विल बी इक्वल टू 6, तो i इज इक्वल टू 4। तो ये अपने आप से सॉल्व करके देखना है आपको, फैक्ट इज इक्वल टू 6, लास्ट वैल्यू क्या है, 6 है ना, ये जो ऊपर से आई है दैट इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, फैक्ट इनटू n मतलब i है ये, तो i अभी क्या है 4, सो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा लास्ट वैल्यू, ठीक है। so this you can make an idea and आपके अगर माइंड में ऐसा क्लियर है then you will be easily doing these programs, ठीक है। इसी चीज को आप while loop में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका उल्टा थोड़ा कर दिया है, रिवर्स, इट इज नाउ गोइंग फ्रॉम बैक साइड, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ऐसा करके, ठीक है। so I have now end the meeting, we'll discuss in tomorrow's class, thank you।